नमस्कार, मेरा नाम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देश की आज़ादी के 79 वर्ष पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी बहुजनों की जो ब्यूरोक्रेसी, इकोनॉमिक, मीडिया तंत्र, पॉलिटिक्स एवं सत्ता पक्ष में जो वास्तविक भागीदारी होनी चाहिए, वो जनसंख्या को देखते हुए वो अभी भी नहीं है। वजह चाहे जो भी हो, वैसे भी देश की आज़ादी के पहले भी बहुजनों की जो बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं था। चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें और चाहे स्वास्थ्य की बात करें। आज भी जो स्थिति है दयनीय स्थिति ही है। ऐसे में बहुजनों को आर्थिक स्थिति में आगे लाने के लिए लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड यानी बहुजनों का भारत में पहला बैंक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। LBFL यानी कि लॉर्ड बुद्धा फाइनेंशियल लिमिटेड का निर्माण बहुत जल्द हो चुका है और अब जो भी जगह पे अभी बाकी है उसकी शुरुआत बहुत जल्द से जल्द की जा रही है। लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड मुंबई में पंजीकृत एक अग्रणी वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसका प्रथम चरण में भारत के निम्नलिखित 6 प्रमुख शहरों में शाखा नेटवर्क संचालित करने का प्रस्ताव है। मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर और लखनऊ। कंपनी माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित है, जिसका फोकस है जमीनी स्तर के छोटे व्यापारी, विक्रेता, वेतनभोगी व्यक्ति, छोटे और मध्यम उद्यम, उच्च निव्वल संपत्ति वाले व्यक्ति। श्री OR मौर्य साहेब हाईकोर्टना एडवोकेट मुंबईની અંદર રહી ચૂક્યા છે। આહિર સમાજના પ્રમુખ સુરતથી પધારે છે। અડિયા સાહેબને વિનંતી છે કે તેઓ પોતાનું સ્થાન લેશે। નિવૃત્ત કલેક્ટર શ્રી RM પટેલ સાહેબ IAS એમને પણ વિનંતી છે કે JR પટેલ સાહેબને પણ વિનંતી છે। નિવૃત્ત કલેક્ટર સાહેબ સંસ્થાના તો એમને પણ સ્થાન લેવા વિનંતી છે। BM મકવાણા સાહેબ ઓહો પધારો સાહેબ, આપને સ્ટેજ ઉપર સ્થાન લેવા વિનંતી છે। પધારો મહેશભાઈનું સ્વાગત કરીએ છીએ। આપણે થવાના છે તમારા અહીં ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે। પગલા તમારા થવાના છે અહીં ચમનમાં બધાને ખબર થઈ ગઈ છે એટલે ઝુકાવી છે। એમની સાથે બધાનું ફરી એક વખત હાર્દિક સ્વાગત છે। પણ આપણા બધાના મનમાં એક હું પંક્તિ આપું છું દુષ્યંત કુમારની, એ આપણે બધાએ ક્યારે ભૂલવાનું નથી। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सारी कोशिशें ये है कि हिंदुस्तान की सूरत बदलनी चाहिए। और हमारे प्रयत्नों से ऐसे लोगों के मेरा भाई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अमर रहो, अमर रहो, अमर रहो। अमर रहो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। अपने जला देंगे दोनों मिल गया हो गया। जितने मिले फूल मिल जाएगी। हो जाएगा बस। અરે હડિયા સાહેબ, તમે માધુભાઈ બંને લોકો છે, પૂરી વ્યવસ્થા છે। બસ થઈ ગયું। હા લ્યો લાવો આપણે અર્પણ કરી દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું। કિલો પગ આપણે ચાલો બસ લાવ બોલ લાવ ફૂલ ફૂલ લઈ પધારેલ તમામ મહેમાનો મહાનુભાવોનું શાબ્દિક સ્વાગત। ચાલ थैंक यू नाथाभाई, थैंक यू डॉक्टर साहब। આજના મુખ્ય મહેમાન શ્રી સુબચન રામ સાહેબ પધાર્યા છે।
यस सर अरे रे 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 सर पटेल साहेब आमदार થેન્ક યુ પટેલ સાહેબ. અરે સાહેબની ગરમ છે. ભારતનો સર્વ અધિકારી જેને કહેવાય એમાંથી છે. આપણે ખૂબ તાળીઓને ગડગડાટ. પીએચડી છે અને કોળી સમાજના સમગ્ર સમાજના આગેવાન બેસાડીએ સાહેબ. આભાર મોહનભાઈ. રાજસ્થાનથી પધારેલા શ્રી વેલારામ ભાઈ આ સિવાય પણ આજે થેન્ક યુ સાહેબ. શાંતિભાઈ કાકડી. ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર સામાજિક દાયિત્વ ફેડરેશન, પ્રોગ્રેસિવ કાઉન્સિલ ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, SC/ST હબ, DIC ના સંયુક્ત ઉપક્રમે મિત્રો ઇકોનોમિક એમ્પાવરમેન્ટ કેમ્પેઇન જે 45 ડેઝ 45 દિવસ માટે જે PCCIના પ્રેસિડેન્ટ તેમજ જે આપણી આગામી દિવસોની અંદર જે SC/ST ના લોકોને આવરી અને જે બેંક બનાવવાનું સપનું લઈને ચાલનાર આ સભાના ઉદ્ઘાટક અને સમાજને એક દિશા આપનાર માન્ય ગવઈ સાહેબ, તેવા જ સુરતના બિલ્ડર એસોસિએશનના પ્રમુખ અને અમારા સૌના રાબર અને જેની પાસે ખૂબ બેઝિકલી ટેકનિકલ નોલેજ કરી અને યુવા ઉદ્યોગકારોને જેમને દિશા આપનાર એવા આપણામાંના જિગ્નેશભાઈ પટેલ, જેઓ આઈટીની અંદર પ્રિન્સિપલ સેક્રેટરી તરીકે રિટાયર્ડ થઈ અને આપણી જેને કહેવાય ને કે ભેગ ધરી છે સમાજને જોડવા માટેનું, સમાજનું કાર્ય કરવા માટેના એવા મારા સ્નેહી મિત્ર સુબચનરામજી, જેઓ પોતાના પરિવારમાં તમામ લોકોને એડવોકેટની ડિગ્રી એટલે બાબા સાહેબે જે એક ડિગ્રી લીધી હતી એવા આખા પરિવારને બધાને અપાવનાર અને સમાજ માટે વર્ષોથી એક જ ધૂન લગાવી અને ચાલનાર આપણી વચ્ચે એવા શ્રી OR મોરિયા સાહેબ, જેने की मतलब उसके अंदर जज्बा है, विचार है, समाज को देने की कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं. ऐसे हमारे बीच में पधारे हुए RM पटेल साहब निवृत्त IAS अधिकारी और माजी कलेक्टर श्री, तेमज जेने उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए, उसको सही दिशा में दर्शाने के लिए आप देखते होंगे तो अभी हम लोग आपको हर बात से अपडेट किया, हर दिन मान लो आज से लास्ट 8 दिन से हमको आपको अपडेट करते हैं. एक दिन हमने मैसेज ये छोड़ा, दूसरे दिन कार्ड छोड़ा, तीसरे दिन कैसा मेनू रहेगा वो छोड़ा, फिर बोला हमने कि भाई हम ये मीटिंग क्यों बुला रहे हैं. तो उसके लिए हमने जो विषय रखा था कि लॉर्ड बुद्धा फाइनेंस लिमिटेड जो है हमारी, उसको हम बैंक में कैसे कन्वर्ट कर पाए, और कन्वर्ट कर पाने के लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड भी होना चाहिए. तो सफिशिएंट फंड हम जब ये बैंक का विषय लेके चले थे लॉर्ड बुद्धा, तब
आरबीआई की गाइडलाइन 2.5-3 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख की थी। तो मैंने यहाँ से मैं और आरजे पटेल साहब ने हमने मौर्य साहब का फोन आया। मौर्य साहब बोल रहे हैं कि आज लास्ट डे है, तो आप ये फॉर्म भर के हमको इतना पैसा मतलब 1 लाख करीबन लेते थे। तो हमने तो क्या बोला कि मैं तो खुद ऐसा विचार करने वाला आदमी हूँ, आप लोग मेरे से 20-25-30 साल से सब जानते हैं कि अपना भाई छोटा हो या बड़ा कोई ध्येय लेके चलता है। तो मैंने कुदरत ने मेरे को जो दिया है, तो मैंने करीबन 10 मिनट के अंदर जो उसने खाता बनाया उसके अंदर मैंने और आरजे पटेल साहब ने ट्रांसफर कर दिए 1 लाख रुपये। देखो मित्रों, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब 2,10,000 रुपया बैंक बनाने का आरबीआई का नॉर्म्स था, उसका फंड की रिक्वायरमेंट थी। अभी क्या हुआ कि उसके बाद हमारी फॉर्म बम सब रख दिया सब कुछ, तो आरबीआई की गाइडलाइन चेंज हो गई। आरबीआई की गाइडलाइन ऐसे हो गई कि अभी आपको प्राइवेट बैंक बनाना है तो करीबन उसका 10 करोड़ जो पहले अपने शेयर मुड़ी बोलते हैं उसको सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख से सीधा 2 करोड़ 10 लाख से सीधा कितना हो गया भैया? 5 टाइम हो गया। तो हम वहां तक तो पहुंच गए थे, उससे भी आगे चल गए थे, लेकिन गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है, उसका रूल्स है वो रूल्स है। इसके लिए कोई ऐसे बोलेंगे कि भाई हम ये है तो हमारे लिए अलग कोई नियम है नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ कि हमारी जो स्पीड में काम करने की जो स्थिति थी वो स्थिति कुछ तक बोलते ना स्टेप बम्पर आ जाता है तो गाड़ी को क्या करना पड़ता है? धीमी ब्रेक मारना पड़ता है। तो हमारी गाड़ी को ब्रेक हो गई है, अगर वो बम्प आया है तो वो आप यहाँ बैठे हुए सब लोग जिनके पास कुछ ना कुछ है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ जो हम लोग बैठे हैं वो कुछ ना कुछ दे। आप अगर बाबा साहब को एक निकाल दो और फिर अपने आप में अपने कुल के बारे में अपने खुद के विचार के बारे में हम सोचेंगे तो हम कहां पाएंगे वो देख लो भैया। बहुत बहुत गहराई से आप यहाँ जो बैठे हैं लोग इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, आप सब लोग, कोई ना कोई रिटायर्ड अधिकारी है, कोई ना कोई बिजनेसमैन है, कोई देंगे। और यहाँ ये तो अब काम करने का ही है, हम सबको करना है। कौन कितना कर पाएगा वो कोई नहीं जानता। बाबा साहब ने जो हमको कुछ न कुछ रास्ता दिया है वो रास्ते पे हमको सबको आगे बढ़ना है। कोई दो मान लो कि हमारी जो पूरी 142 करोड़ की जनसंख्या है, अगर हम नैतिकता की ओर एक एक डग बढ़ाएंगे तो 142 करोड़ डग एक दिन में, एक सेकंड में हो सकता है। ऐसे हम लोगों को जो हमारा सपना हमारे समाज के लिए देख के चलने वाले गवई साहब है, मौर्य साहब है, सुभाष चंद्र राम साहब है, उनको हमको भरोसा दिलाना है। उसके लिए कुछ न कुछ हमारे लिए, मैं तो बहुत से दिन में मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कहता हूँ कि कोई भी भरोसे पे हम काम करें भैया आप सबके, तो कुछ न कुछ आप सब लोग जो ये कारवा लेके चल रहे हैं उनको कुछ न कुछ हलेसा सबको मारना पड़ेगा, कुछ न कुछ सहयोग सबको देना पड़ेगा। दूसरा जो चौथा है, होम बैठे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका न्यू स्वरूप लेकर हम tradify.co.in लेके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे जो भी लोग छोटे हैं बड़े हैं जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कि कोई अच्छी तरह से एक થશે કે જ્યારે હિન્દુસ્તાનની અંદર ઈ કોમર્સ નામની જે પાંચ સાત કંપનીઓ હતી ત્યારે મેં હોમ બેઠે ઈ કોમર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ શરૂ કરેલું, ત્યારે લોકોના અંદર વિઝન પણ નહોતું કે ભાઈ આ ઈ કોમર્સ શું કહેવાય। જ્યારે કદાચ તમે 2-4 નામ સાંભળ્યા છે, એમાં એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ,
અને બીજું ત્રીજું હતું ભારતની અંદર ત્યારે તમે સર્ચ કરતા તો મારી 50મી કંપની તમને સર્ચ કરો એટલે આવતી હતી ઈ કોમર્સમાં. આ છેલ્લા આટલા 13-14 વર્ષ 9-10 વર્ષનો અનુભવને આધારે મિત્રો આ અમે નવું વર્ઝન તરીકે બધાયને જોડવા માટે નાનામાં નાનો જે કામ કરતો હોય હાથ સિલાઈનું કામ કરીને એક નાનું એવું એમ માની લો કે એક રમકડું બનાવતો હોય ને તે એવા બધા જ લોકોને 1000 લોકોને અમે પ્લેટફોર્મ 1 લાખ લોકોને પ્લેટફોર્મ અમારા ત્યાં મળે એ રીતનું વિઝન લઈને ચાલીએ છીએ. બસ ત્યાં રાખી દો એટલે સાહેબ કરે. ક્યાં કરવાનું બોલો જો. બસ ચાલો. हाँ यस. Congratulations. सर ये पूरे भारत में आप 45 दिन का आपका जो जर्नी है हमारे परिवार के हमारे मान लो कि जो भी विचार में मानने वाले बिजनेस करने वाले सबको जोड़ना है. Yes. सर 10 लाख किलोमीटर जितना तो ट्रैवल करने वाले और कितने राज्य में जाने वाले सर? 40. 40 10 राज्य और 40 सिटी. 40 सिटी में I will जाने explain वाले. about that. ઓકે થેન્ક યુ. તમારા બધાના વિશ્વાસ છે, ભરોસે આ બધું કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આવનારા દિવસોમાં આપણે સૌ સાથે મળી અને વધારે શક્તિ આપણા બધામાં પેદા ડૉક્ટર બાબા સાહેબને આધારે થવાની છે. અને ગવાઈ સાહેબને અહીંથી આપણે જે કંઈ કહેવાય કે આપણે ફૂલની તો ફૂલની પાકડી જે આમાંથી બીજા મારા 5-10 મિત્રો પણ એનો પોતાનો ઉત્સાહ 5-25 મિત્રો અહીંયા બેઠેલા સ્ટેજ ઉપર ને મિત્રો પણ કરી શકે. 2 જણાએ કરવું તો બીજા 5 જણા બી કરી શકે અને નીચે વધારે સંખ્યા થાય એવી અપેક્ષા રાખું છું. ધન્યવાદ. के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे बड़े भाई भगवान गवई साहब, सूसा साहब, हमारे जिग्नेश जी, हमारे साथी जो मुंबई कमिश्नर भी रहे, सूरत कमिश्नर भी रहे, इलाहाबाद कमिश्नर से वापस गए. उनकी लाइफ में सरकारी पद पे रहते हुए भी आप हमेशा मेरे सामने कहा कि ये मेरी नौकरी में मेरे जूते की नोक पे रखता हूँ और बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले राम जी और तमाम साथी, हमारे 15 साल के पुराने साथी मनु भाई चावड़ा साहब, आप तथागत बुद्ध के पूरा कोली समाज में आभार है. और उनके बाद में हमारे जो विधायक जी वसावा, पूरा परिवार, महेश भाई, दादाजी, तमाम सारे यहाँ जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं. देखिए हमारे ननिहाल पंच के जो नंद वंश के यहाँ भी अध्यक्ष हैं हमारे, हाँ विजय भाई मसूरिया साहब आज कितने सालों से सेवा कर रहे हैं, हमारे राजस्थान से हैं. तमाम सारे साथी लोग, मुझे याद आता है कि 2500 साल पहले भगवान बुद्ध के काल में इसी तरह से जो 10 गणराज थे, कोली पटेल, काचिया पटेल, लेवा पटेल, जो भी ये सब थे वो 10 गणराज के, हम लोग पूरा एक परिवार के थे. हमारे भाई बैठे हुए वहाँ, पटेल साहब बैठे हैं, हमारे चौहान साहब बैठे हैं जो वकील साहब हैं, ऐसे तमाम सारे साथी लोग. साथियों, मैं 14 साल की अवस्था में मैं संघ में था. 18 साल की अवस्था में 3 महीने में जेल में था. मैं बता दूं आपको, अटल जी के साथ में हमने स्पीचेस दी हैं, रथ यात्रा भी किया है. 84 का दंगल भिवंडी का हमने देखा है, किस तरह से ब्राह्मण आली, वानी आली, सुतार आली, काप आली आली, और किस तरह से बंगालीपुरा, खजूरपुरा, जैतूनपुरा, निजामपुरा, ये आली, और किस तरह से दंगल हुए हैं वह भी मेरी आंख से देखा है. 84 में बाला साहेब ठाकरे भी हमारे घर पे आए हुए हैं. उस काल में 18 साल की अवस्था में जेल में था. जो हमारे योगी, आप हमारे पुराने साथी हो, उस काल में मैं इनके सारे चारों वेद, पुराण, उपनिषद, भारत, महाभारत, सारे ग्रंथों का मैं अध्ययन किया. हमारे मौर्य समाज के तमाम पीछे लोग बैठे हुए हैं, लगभग 25 साल से 30 साल से. सूरत है, वापी है, अंकलेश्वर है, भड़ोच है, अहमदाबाद है, खूब हम चर्चा करते रहे.
हमें समझाते रहे कि ये देश दो तरह का कल्चर है, एक समन कल्चर है, एक वोमन कल्चर है। और ये जो समन कल्चर है, उसावा जी, हम लोग हैं, हम जितने भी ये 10 गणराज्य के लोग हैं, साक्य, मौर्य, कोलीय, लिच्छवी, विशाली, विदेह, अलकप, भग्ग, मल्ल, रट्ट, ये हम सारे श्रम करने वाले लोग हैं। एक वमन कल्चर के लोग हैं, जो हराम के खाने वाले लोग हैं, जो इस देश को लूट कर भागने वाले लोग हैं, उनको खत्म करना है। मैं भी कई इलेक्शन लड़ा। मेरी वाइफ मुंबई महाराष्ट्र की पहली महिला चेयरमैन बनी, वो शिक्षा में, वकील संगठन में, नगर सेवक में भी रहा। लेकिन ये राजनीति से कुछ हल होने वाली बात नहीं। हमने वो बीएसपी का दौर भी देखा उत्तर प्रदेश में, कुछ इसका ये नहीं है। हम एक कहानी आपको बताना चाहते हैं कि तथागत बुद्ध, चूंकि ये लॉर्ड बुद्धा के नाम पे एक कंपनी बनी है, इसका एक कारण भी है कि बुद्ध जैसा शुद्ध पूरी दुनिया में कोई है नहीं। इसको यह भी, ये समन तो इनको स्वीकार करता ही है, लेकिन वमन कल्चर, ब्राह्मण कल्चर, उन्होंने भी, जैसे अभी राम मंदिर का उद्घाटन किया, उन्होंने बुद्धा की मूर्ति रखी। उनके सारे धर्म ग्रंथों में, ये चाहे उनका शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवैवर्तन पुराण, रवि पुराण, जितने भी हैं, मत्स्य कुर्मवारा नरसिंहो वामन, रामो रामस्य कृष्णस्य, बुद्ध कल्कि आक्रमण, बुद्ध को भी उन्होंने अपना एक भगवान माना। तो साथियों, आज जापान किसको मानता है, चीन किसको मानता है, कोरिया किसको मानता है, जितने भी 140 देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड भी, सब हर जगह वो जो है उनके सब बंद कर रहे हैं। बुद्ध जो है एक शुद्ध है, एक वैज्ञानिक विचार है। अभी कल हमारे दादाजी से, वसावा साहब से कल रात में बड़ा अच्छा भोजन दिया आपने, क्योंकि हम लोग 1.5 महीना निकल रहे हैं पूरे देश में भ्रमण के लिए, तो खूब चर्चा हुई। सुबह सुबह कौन सा जगह था जहां आप लेके गए थे पहाड़ पे? हाँ, वो डूंगर है, पूरा भगवान बुद्ध की स्थली है। देखिए कलेक्टर साहब, आपसे खूब चर्चा होती है इस मुद्दे में, तो मैं वो कल्चरल पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध का एक काल था, वो जा रहे थे, तो एक किसान था, वो कोली पटेल भी हो सकता है, काछिया पटेल, लेवा पटेल भी हो सकता है, किसान था, कुन्मी था, वो परेशान था, जंगल में जा रहा था। बोले क्या है उसका परेशानी का कारण क्या है? तो उनके साथ में जो भिक्षु थे बोले अब जाओ देखो, तो वो बोले यार इसका बैल गायब हो गया है। बोले जाओ इसका बैल ढूंढ के लाओ। गए सारे भिक्षु लोग, उसका बैल ढूंढ के लाया। तो भिक्षु संघ बोले अब इसको हम दीक्षा दें, धार्मिक बारे में बताएं? बोले नहीं। तथागत बुद्ध ने कहा नहीं, सुबह से वह किसान परेशान है, उसको कुछ भोजन दो। उसको बुलाया, भोजन दिया, उसका मन संतुष्ट हो गया, इसके बाद में उसको दीक्षा दी। साथियों, हमारे बोलने का मतलब यह है कि आज ये हमारा जो 90% 80% जो लोग हैं, हम समन कल्चर के लोग हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं उद्योगपति यहाँ से पैसा लेके बाहर जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं, हमने ये अहद किया है कि हमको हमारे खुद के बैंक होने चाहिए, पूरे देश में हमारी खुद की कंपनी होनी चाहिए, हमारा उद्योग होना चाहिए। जैसे मनु भाई आज 20-25 स्कूल कॉलेज चला रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनके जैसा शिक्षा जगत में पूरे जगह जगह निकले। हमारे कलेक्टर साहब जैसा इन्होंने कितना बढ़िया बढ़िया काम किया है, ऐसे लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए मैंने आप सबसे आग्रह किया था उस काल में, बोला ज्यादा कुछ नहीं, हमको आप जो है 1-1 लाख रुपए जमा करो आरबीआई में। लगभग पूरे देश से हमने 250-300 IAS, IPS, IG, DIG, कलेक्टर, कमिश्नर, हमारे वो सुभजन राम जैसे अधिकारी, बोला पैसा दो हमको जल्दी, तुरंत उन्होंने दिया। देने के बाद में हमने 2 करोड़ 10 लाख का एक टारगेट था, तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। हमने आरबीआई को मूव की कि हमारी खुद की एक कंपनी लॉर्ड बुद्धा के नाम पे होनी चाहिए, खुद का बैंक होना चाहिए। एक पंडित जोशी जी वहाँ बैठे हुए थे आरबीआई में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, लॉर्ड बुद्धा के नाम पे, अच्छा। तो बोले ये आरबीआई ने ऐसा कहा है, कम से कम फ्यूचर में एनबीएफसी कंपनी के लिए 10 करोड़ होना चाहिए। तो कोरोना का मैटर था, बोला पंडित जी आप टेंशन मत करो, हमारे पास 80-90% इस देश के मूल निवासी लोग हैं, और बुद्धा के नाम पे 10 करोड़ नहीं 10,000 करोड़ हम इकट्ठा करेंगे। पूरे जिले में हर जगह हमारी खुद की बैंक बनाएंगे, हम हर तरह का उद्योग बनाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरे देश में निकले। गवई साहब इनके पीछे में 3 साल से पड़ा हुआ था। मैंने कहा और कितना पैसा कमाओगे? दुबई का शेख आपका पार्टनर है, पैसे की कोई कमी नहीं है, हर जगह लगे हुए हैं, कितना खा के आप कितना खाओगे? चलो हमारे साथ में। 3 साल से पीछे पड़े निकले। जब समझ में आया, नहीं, बोले मौर्य जी हमको पे बैक टू द सोसाइटी करना है। और आपको बता दूं, रात भर हमारे साथ हमसे ज़्यादा काम करते हैं, हमसे उम्र में 4-5 साल ज़्यादा है। बड़ा मुझे अच्छा लगता है। तो इनके मन में भी हमने एक सपना हो गया है कि हम बाबा साहब के सपने को, महात्मा ज्योतिबा फुले, बता दूं आपको,
कि जमशेद जी टाटा का 2 लाख का टर्नओवर था, या जो पगड़ी बांधने वाला जो एक कुनमी किसान जो आपको दिख रहा है, इनका पुणे की कंस्ट्रक्शन में 20 लाख का टर्नओवर था। जमशेद जी टाटा से 10 पट ज्यादा पैसा इनके पास था। कितना बड़ा कंपनी आपको, बड़ौदा नरेश का महल इन्होंने बनाया। आप CST स्टेशन देखो, इन्होंने बनाया। हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, ईमानदार लोग जब निकल जाए मैदान में तो उनके अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई है। जितने भी चोर लोग हैं आज लूट लूट के पैसा लेके भाग रहे हैं, इनको बंद करना है। ये अडानी अंबानी की कंपनियों को खत्म करना है। जिस दिन हम लोग खड़े हो जाएंगे एक साथ में, हमको एक नारा है कि हमारा वोट अपनों को, हमारा नोट अपनों को। और दुबई के तमाम जो वहाँ मुस्लिम कंट्रीज के लोग भी तैयार हैं। भिवंडी में भारत का जो जामिया इस्लामिया ना हिंद जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के बोर्ड, सब उन्होंने कहा कि आप इस कंपनी में हम पैसा देंगे, हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं चाहिए। जो भी जितना पैसा होगा, ये हो गया कि भाई आपका जो पैसा है, जो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार आज एक बैंक का होता है, पैसे का होता है, उसको हम हमारी मिशन में लगाएंगे, हमारे लोगों को उठान में लगाएंगे। साथियों, तो इसके लिए हम और गवई साहब पूरे देश में निकले हुए हैं। लगभग 1.5 महीना हम उत्तर भारत के 10 स्टेट में निकले हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ये चाहे तो हम 10 करोड़ में इनसे ले सकता हूँ। अब इनके घर में भी मैं घुस गया हूँ, 10 करोड़ 15 लोग लेकिन कल इनकी पीढ़ी आएगी, वही मालिक बन जाएंगे, फिर कोई अडानी अंबानी पैदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे समाज की कंपनी बने, जिसमें आप लोगों की सबकी हिस्सेदारी हो। सारे लोग यहाँ पर आएँ और सारे लोग उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी अहद करें, नक्की करें। इसके लिए हम लोग सब मालिक बने, यही हमारा आप सबसे आग्रह है। और इसमें सोसा साहब बैठे हुए हैं और तमाम हमारे कमिश्नर साहब बैठे हैं। अभी बहुत बड़ी जवाबदारी सावा साहब को दिया गया है। हर तरह से तैयार हैं, पूरे देश में हमारी पूरी टीम तैयार है। यही नहीं, हम लोग भारतीय समाज संघ बनाए हैं। भारतीय समाज संघ जो बिहार में, जिन्होंने जगदेव बाबू ने कहा था पहली पीढ़ी एक्स नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज़्यादा हम किसी को लेने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कैसे सब 2, 5, 10 लोग आ जाएंगे, 50 लाख इकट्ठा देंगे, उसके मालिक बन जाएंगे। हम चाहते हैं पूरे भारत के लोग इकट्ठे हों इसमें, इसीलिए ये जवाबदारी है। तो 1 लाख से 50 लाख इसका एक नॉट मोर देन 50। એ દો કે તમારા દેખાવ બંધ કરો, હા અમારી બધી નાવ ડૂબીને તમારો દરિયો આખો ઢોળાઈ જશે, આ જાહેર કરી છે। તો આપણે બધા સંગઠન जय भीम। जय भीम, जय भीम। ये जय भीम नारा नहीं, विचारधारा है। इट्स नॉट ए स्लोगन, इट्स आइडियोलॉजी। ये हम लोग को जानना है। आज मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्माननीय और हमारे समक्ष बैठे हुए जितने भी आगंतुक अतिथि हैं, हम लोग बहुत सीरियस होकर, सीरियस बात को लेकर, सीरियस लोगों के बीच में आए हुए हैं। जिस मीटिंग का, इस कॉन्फ्रेंस का, कन्वेंशन का बेसिक उद्देश्य ये है कि जो वंचित समाज है भारत का, लगभग 85%, 87% है, उसका एम्पावरमेंट कैसे हो, उसका सशक्तिकरण कैसे हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक आजादी की लड़ाई लड़ी और जीत कर हम लोगों को फ्री में दे दिया, फ्री में मिल गया, इसलिए गैर जिम्मेदार भी हो गए हम लोग। यदि घरों में जो है ना फांसी पर लटकाए जाते 2-4 अपने बाप दादाओं की तस्वीर होती कि भाई सामाजिक आज़ादी के लिए जो हमारे शहीद हुए थे, तो आपका हमारा खून ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन बाबा साहब ने वातावरण दे दिया, तो जो लोग करोड़पति या बजपति बन गए हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे पुरुषार्थ से, मेरे मेहनत से बना हुआ है। ये नहीं पता है कि बाबा साहब वो वातावरण नहीं देते तो आपका पुरुषार्थ, आपका इंटेलिजेंस, आपका पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद, बेकार हो जाता है। कहीं खेतों पर काम करते रहते, या कहीं जो है छिलते रहते, या छोटा मोटा काम करते रहते हैं। उन्होंने वातावरण दी। संविधान बनने से, बंधारण बनने से पहले वातावरण दिया। संविधान तो बहुत बाद में बना है। पहली लड़ाई वो 1917 में लड़ ली, दूसरी लड़ाई 1919 में साउथ बरो कमेटी के सामने लड़ी, तीसरी लड़ाई जब उन्होंने प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी लिखी, चौथी लड़ाई जब रॉयल कमीशन आता है उसके समक्ष अपनी बात रखते हैं,
5वीं लड़ाई साइमन कमीशन के सामने रखते हैं, 6ठी लड़ाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और अंतिम लड़ाई वाइस राय के काउंसिल में जब बाबा साहेब लेबर मेंबर थे तो लड़ी। और हमेशा जो वंचित वर्ग है, बैकवर्ड कम्युनिटीज है, डिप्रेस क्लासेस हैं, उसके लिए खुल्लम चैलेंज करते रहे अपने विरोधियों को, चैलेंज करते रहे उन सारे ताकतों को जो सप्रेस किए हुए थे, और हमें और आपको यहाँ ला के छोड़ा कि हम हमारी समस्याओं का समाधान उनसे मांगते हैं जिन्होंने समस्या पैदा की है। और हम लोग डॉक्टर अंबेडकर को नहीं समझ पाए, वो इस लेवल पर ला के हमें छोड़ दिया कि हमारी समस्या है तो इसका समाधान भी हमें करना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या किया, पढ़ाई मगज का अभाव कह लीजिए, पढ़ाई लिखाई का अभाव कर लीजिए, एजुकेशन का अभाव कर लीजिए, कि हम ये मान लें कि हमारी समस्या का समाधान जो सरकारें आती हैं, ठीक है, जिनकी सरकार बनती किसी की बने, हमारी समस्या का समाधान वो करेंगे। इसीलिए जो हम 50 साल और पीछे पिछड़ गए, बाकी लोग बहुत आगे चले गए, और पछात वर्ग के लोग 10, 20, 25, 50 लोग बढ़ गए हैं। वो पूरे 90 करोड़ को जो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो एक्सेप्शन में होते हैं। जब लोगों को कपड़े नहीं पहनने को मिलते तो उस समय मेरे पिताजी ने भी जो दुकान खोली थी 1952 में, बाबा साहब से मिलने के बाद, 1 एकड़ का मकान बनाया हुआ है 65 में। तो हम एक्सेप्शन हो सकते हैं। पूरा हमारा गांव आज भी वही है जहां आज से 50 साल पहले था। तो ओपी मौर्य साहब वहां संकेत कर रहे हैं, उनका वहां नजर है, क्योंकि गांव घूम रहे हैं। बड़े शहर में, बड़े मर्सिडीज में, बड़ी जगह पर रहने वाले लोगों में से नहीं है हम लोग। गांव में, विलेज में जाइए आप, बॉम्बे में, खाली बॉम्बे का मेन रोड छोड़ के किनारे चले जाइए तो उतना बदतर सिटी दुनिया में कहीं नहीं होगा, जहाँ नाली में लैट्रिन हो रहा है, बह रहा है, उसके बगल में माँ जो है खाना खा रही है बेटी को खाना खिलाए। मैं वहाँ देखा हुआ हूँ, अंधेरी में, अंधेरी की बात कर रहा हूँ। वहीं फर्स्ट क्लास के सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, और वहीं जो है अंधेरी के बरसोवा के कॉर्नर पे हीरा पन्ना महल है, उसके बगल में झुग्गी झोपड़ी में बहुत ब्याह था, मुझे लेके गए तो वहीं मैं देख रहा था कि नाली का पतला सा था, उसमें लैट्रिन बह रहा था, माँ वहाँ बैठी हुई थी। मुझे क्या, हमने कहा यहाँ कैसे लेके आए मुझे भाई? कहते साहब बुद्ध विहारा बनाया हुआ है। हमने कहा यहाँ? कहते हैं इसलिए बनाया हुआ है कि नहीं तो गवर्नमेंट इसको तोड़ ताड़ के हम लोग को हटा देती है। वो मैंने देखा बॉम्बे में, ये सच्चाई है। ये जो छोड़ दीजिए, मैं उस टॉपिक बने जा रहा हूँ, ये क्लोज करता हूँ। हम लोगों का बेसिक उद्देश्य ये था कि सामाजिक आज़ादी बाबा साहब ने जीत के हमको दे दिया, हम उस सामाजिक रूप से संपन्न हो गए। जो 20 की दूरियां थी सब कम होने लगा, ट्रेन में जा सकते, बस में बैठ सकते, फ्लाइट्स में जा सकते, बिजनेस कर सकते, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरी लड़ाई थी, वो है राजनीतिक लड़ाई। राजनीतिक रूप से भी उन्होंने आज़ाद कर दिया कि वोट चाहे जिसको भी देना हो दो, धारासभ्य बनो, एमपीज बनो, मिनिस्टर्स बनो, वो दे दिया। राजनीतिक लड़ाई भी वो जीती, हमें आज़ाद कर दिया। अब तीसरी जो लड़ाई थी वो है आर्थिक आज़ादी की लड़ाई। जब ये शुरू करने का दौर आया तो बाबा साहब को मिनिस्ट्री से जो है रिजाइन करना पड़ गया। रिजाइन करते समय उन्होंने कहा था कि प्लानिंग कमीशन जो मुझे नेहरू मिनिस्ट्री देने वाली थी, प्रॉमिस भी किया था, लेकिन बाद में पता चला कि कैबिनेट मिनिस्ट्री में हमें बैठने भी नहीं देते थे, बुलाते भी नहीं थे। बाद में इंटीमेशन होता था बाबा साहब को, प्लानिंग कमीशन नहीं दिया। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो जितने भी प्रोसेस थे उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हुई थी। बाबा साहब नाराज हुए, उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बहुत सारे, जब कभी चाहे रिलायंस फ्रेश नाम ले लीजिए, डी मार्ट ले लीजिए, ये सब ये जब तक इनका कॉन्सेप्ट नहीं था उस समय बाबा साहब ने 5 जो डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवाया था बॉम्बे में। 5 डिपार्टमेंटल स्टोर, मेरे मोबाइल में फोटो है, 5 डिपार्टमेंटल स्टोर। अब बोला था कि ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के, क्योंकि कंजम्पशन का उस समय ज़माना था, मैन्युफैक्चरिंग का ज़माना बहुत कम था, उतना पैसा हो नहीं सकता कि आप मैन्युफैक्चरर हो जाएं। तो कंजम्पशन के लिए क्या है कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको दुकान में ला के बेचो और उसका प्रॉफिट लो। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत उस समय दी थी। और आज़ादी कहते हैं ना, आर्थिक आज़ादी की जंग शुरू की और हमारे बीच से चले गए। वो काम हमें और आपको जो छोड़ दिया, और वही कारवां जो रुका, उसी कारवां को आगे ले जाने के लिए जो है
ये टीम जो बैठी हुई है भाषण देने के लिए नहीं बैठी है, टीम जो है फूल माला पहनने के लिए नहीं बैठी हुई, वीआईपी बनने के लिए नहीं बैठी हुई है। लगातार जो है खाना मिले ना मिले, खराब खाना मिले और बहुत अच्छा खाना मिलता तो वो भी बीमारी पैदा करता। आपको पता है, घर से बाहर निकल जाइए तो खाना के माध्यम से हम लोग बीमारी खाते हैं। इसकी चिंता किए हुए बगैर जो है ओपी मौर्य, हम समझते 50,000 किलोमीटर उन्होंने जर्नी की है। भगवान भाई गवई साहब जो है सोच लिया है कि हमें अपने समाज का इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। तो ये जो मोमेंट यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक मोमेंट है और वो मोमेंट है वो कारवां, जिसको अभियान लिखा गया है कि भाई आर्थिक सशक्तिकरण अभियान, मतलब आर्थिक आज़ादी का अभियान ये छेड़ा गया पूरे देश में। और कैसे किया जा सकता है आर्थिक रूप से आज़ादी, कैसे हम लोग इस देश में स्थापित कर सकते हैं, उसके लिए 4 चीज़ें हमने शुरू की है। पहली चीज़ ये है कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी पार्टिसिपेटिव रोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। पार्टिसिपेट आप नहीं करेंगे तो अकेले हम अरबपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, दिनेश भाई हमारे हो जाएंगे, नानू भाई हो जाएंगे, भगवान गवई भाई हो जाएंगे, कोई भी हो जाए तो उससे समाज को क्या लेना देना है। आपका जो ताजमहल जैसे मकान बना लो, 4-6 मर्सिडीज रख लो, है ना, 1000 एकड़ जमीन के मालिक भी हो जाओ, आप हो जाओगे ना, समाज थोड़े हो जाएगा। और बाबा साहेब हमको और आपको एक चीज सिखा गए हैं, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हैं, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, कितने लोग हैं जो अपने को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोशल लीडरशिप लेना चाहते हैं। कोई नहीं, अपने में बिजी हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपने लिए बनना चाहते हैं, अपने टीचर अफसर जो भी बनना चाहते हैं, पर सोसाइटी के लिए कौन सोचता है? जो सोचता है वही घर से बाहर निकलता है, जो नहीं सोचता वो घर में या दुकान में या फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, अपार्टमेंट में मस्त रहता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग जो है पूरे देश में सोशल लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं। वो सोशल लीडरशिप ही जो है इकोनॉमिक लीडरशिप की तरफ ले जाएगा। तो ये पहली चीज। दूसरी बात, इकोनॉमिक सशक्तिकरण, इंपावरमेंट कैसे किया जाए, उसके लिए 3-4 मॉडल्स हम लोगों ने रखा, जिसके विषय में बहुत डिटेल में जो है भगवान गवई साहब अभी बताएंगे थोड़ी देर में ही। उस प्रोसेस में 2-3 बातें मैं बता दूं। इंपावरमेंट कैसे किया जा सकता है अपने समाज का, वंचित समाज का। एक कॉन्सेप्ट ये आया, एक सोच आई, थॉट आया कि हम क्यों नहीं एक बैंक बनाए। प्रकाश मौर्य जी ने मुझसे पूछा था कि दुनिया में सबसे अधिक जो है ट्रांजैक्शन किसका होता है, सोने का, चांदी का, हीरा का, जवाहरात का, जमीन का, सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन किसका होता है, लैंड का किसका होता है, कंज्यूमेबल गुड्स का किसका होता है। तो हम लोग बहुत सारी बातें बताएंगे, कैपिटल गुड्स का होता है। तो तबाक से ओपी मौर्य साहब ने कहा कि नहीं साहब, मनी का सबसे अधिक ट्रांजैक्शन होता है दुनिया में, रुपए पैसे का। बैंक में जाओ, है ना, या नहीं भी जाओ तो भी आपका दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन बैंक का होता है, और बैंक ही हमारे हाथ में नहीं है। तो फाइनेंशियल जो आज़ादी की बात है, उसका बेसिक जो सोपान वो तो हमारे हाथ में है नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके चला गया कि नहीं, हम बैंक बनाएं। जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो 1-2 स्टेट में ही रह सकते हैं, 3 स्टेट से मैक्सिमम होते हैं, नेशनल लेवल पर नहीं हो सकते हैं। नेशनल लेवल पर बैंक बनाने के लिए जो फॉर्मेलिटीज होनी थी वो शुरू हो गई। पैसा भी जमा हो गया, 2 करोड़ रुपये जमा हुआ लाइसेंस के लिए, ICICI बैंक में जमा किया गया, और लाइसेंस के लिए अप्लीकेशन गया RBI में। तो उसी समय सितंबर में ये अप्लीकेशन होता है, अक्टूबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या RBI का रूल्स आता है कि 10 करोड़ रुपया जब मिनिमम आपको जमा करना पड़ेगा, और आपको सीड मनी कह लीजिए उनका, वो जमा करिए, और उसके बाद आपके पास वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। इसको लेकर जो है प्रॉब्लम ये आ गया है कि 10 करोड़ के लिए हम लोग अभियान छेड़े तो 2-3-4 करोड़ रुपया और आया, लेकिन बाकी बैलेंस बच गया। ठीक है। इस बीच में तीसरा जो प्रॉब्लम आ गया वो ये आ गया कि जो हमारी कंपनी दिल्ली की हमारी टीम ने बनाई थी, उस टीम ने एक काम ये किया था कि डीमैट अकाउंट्स प्रॉपर अपडेट नहीं किया, और जो पेपर्स के जो कंप्लायंस थे वो नहीं हुए, तो स्टैग्नेट हो गया। और 10 करोड़ रुपये इकट्ठा करना था, तो वो टीम हमारी अच्छी टीम भी जो है वो शिथिल हो गई। तब जो है ओपी मौर्य ने भगवान भाई गवई साहब से कहा कि साहब आप मोर्चा संभालो, और 10 करोड़ रुपये तक 20 करोड़ रुपये मिल जाएगा, गुडविल यदि सही है और काम करके हम लोग दिखाएंगे तो।
उसी अभियान के तहत जो है भगवान गवी साहब ने एक्सेप्ट किया, इनको मैनेजिंग डायरेक्टर कम चेयरमैन बनाया गया और वो कारवां शुरू हो गया है। किसी का पैसा 1 रुपया डूबेगा नहीं, ये डिपॉजिट्स है, ये 1 रुपया भी नहीं। एक और भी हम लोग नारा दिए थे कि 1 लाख रुपए देकर आप भूल जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा लूट जाएगा। उसका एप्रिसिएशन इंटरेस्ट के थ्रू या डिविडेंड के थ्रू होता ही रहेगा, वो चल रहा है। उसका प्रोसेस उसके विषय में डिटेल में बताएंगे, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। चौथी बात कि हम पूरे देश में मार्केटिंग सिस्टम, जैसे अमेजॉन है, बहुत सारे हैं जिसका क्यों हम प्रचार करें, लेकिन इस तरह के सिस्टम के हमारे लोग हम नहीं कर सकते। तो नाथूभाई सोसा ने ये पहले से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और उन्होंने कहा कि मार्केटिंग की नेटवर्किंग जो हमारे पास ऑलरेडी है उसमें हम पार्टिसिपेटिव रोल जो है बढ़ाएंगे और लोगों को जोड़कर जो है मैन्युफैक्चरर हमारा चाहे पंजाब में हो, उत्तर प्रदेश में हो, हरियाणा में हो, तमिलनाडु में हो, जहाँ भी हो, वो अपने प्रोडक्ट्स का जो है वो लॉन्च कर सकता है, प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकता है और कंज्यूमर के पास हम जो है उसको पहुंचा देंगे। वो पूरी नेटवर्किंग जो है उसके डिटेल में बताएंगे नाथूभाई सोसा। वो नेटवर्किंग वो मार्केटिंग सिस्टम ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर दिया गया है, उसका सिर्फ प्रचार प्रसार करने के लिए ये सभा बुलाई गई है कि लोगों को पता चले कि हम लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। और सिर्फ सूरत में नहीं, इस तरह का पूरा नेटवर्किंग पूरे देश में शुरू हो गया है और उससे हम अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्लस प्रॉफिट अर्निंग भी होगा। प्रॉफिट अर्निंग करेंगे दूसरे से और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टिसिपेटिव हमारे ऑडियंस जो लोग हैं हमारे, तो वो उस फील्ड में भी काम हो रहा है। तीसरी बात यह है कि यहाँ SC/ST हब और DIC का भी ये कोलैबोरेशन में एसोसिएशन में कार्यक्रम हो रहा है। SC/ST हब उनके इंडस्ट्रियल हब, प्रोडक्शन का हब या उनके मार्केटिंग के लिए जो है उसका गाइडेंस देना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों के साथ जो है जुड़कर जो है उसकी पूरी जानकारी देना, ये काम भी जो है, ये जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली है। और पूरे देश में चाहे आंध्रा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हरियाणा हो, हर जगह जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में 45 दिन का पूरी लिस्ट बनी हुई है कि हम राजकोट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, गांधीधाम में जाएंगे तो क्या करेंगे, अहमदाबाद जाना हो तो क्या करेंगे, हमको लखनऊ जाना हो तो क्या करेंगे, नोएडा जाना हो तो क्या करेंगे, पटना जाना हो तो क्या करेंगे। शासक वर्ग जो है जो भी है आपको डायमंड बिजनेस में घुसने नहीं देगा। आप घुस के भी जाएंगे 90% लोग लॉस में चले जाते हैं। आप जो है सराफी का काम जो है, कभी उत्तर प्रदेश में जाइए और एक ज्वेलरी का दुकान, दागिना का दुकान खोल के देख लीजिए, आप लॉस में चले जाएंगे, पड़ोस वाला जब प्रॉफिट में रहेगा आपको डैमेज कर देंगे। ये यहाँ सच्चाई है भारत में। इसलिए हम लोगों ने उन बिजनेस को पकड़ना शुरू किया या मोटिवेशन शुरू की है जो मोस्ट मॉडर्न हो, नॉन ट्रेडिशनल हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग पीछे जा सकते हैं। हमारे नए बच्चे जो आएंगे जो कम्पीट नहीं कर सकते ट्रेडिशनल बिजनेस में, तो उसको मॉडर्न बिजनेस जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन बच्चों ने सीखा बेंगलोर में, अमेरिका में गए, कनाडा में गए, जापान से अभी मिस्टर बहाने थे, वहाँ उन्होंने शुरू कर दी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में गए, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे 50 नहीं कई 100 बिजनेस एवेन्यूज़ हैं, प्रोफेशनल एवेन्यूज़ हैं जिसकी जानकारी लोगों को नहीं है। तो उस पर जो हम लोग डिटेल में जो है लोगों को बता रहे हैं। तीसरी बात ये थी कि बैंक का जो सिनेरियो है, बैंक में लोन देने की शर्त ये है कि पहले महीनों भर उसको ट्रेनिंग देंगे तब लोन देंगे। बैंक में पहले उसको जिसको लोन है ना, जितने भी लाभार्थी हैं, बेनिफिशरीज हैं, उसको चयन करने के बाद पहले 1 महीने ट्रेनिंग देंगे कि जो तुम बनाना चाहता है, चाहे मोबाइल का खोल बनाना चाहता है, इसकी जो है कोई चिप्स, ये आपका कॉर्ड बनाना चाहते हो, वायर बनाना चाहते हो, या जो यही बनाना चाहते हो, जो भी है, ये फाइल बनाना, जो भी बनाना चाहते हो, ये प्रिंटिंग मटेरियल करना चाहते हो, इस तरह कुछ भी बनाना चाहते हो, आप जो है पेपर नैपकिन बनाना चाहते हो, वैराइटीज़ हैं। पहले उसकी ट्रेनिंग दे दो, बिजनेस ट्रिक्स सीख जाओ, बिजनेस ट्रिक्स सीख जाए, उसके बाद बिजनेस करना आसान हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करके, प्रोड्यूस करके सेल करना बड़ा आसान हो जाता है। उसकी ट्रेनिंग देकर लोन देंगे तो 100% सक्सेसफुल रहेंगे। बिना ट्रेनिंग दिए हुए पैसा दे देंगे, आप 1 लाख रुपये दीजिए, 1 सप्ताह के बाद वो 90,000 ही उसके पास रहेगा, 10,000 रुपये खा पी जाएगा। फिर जो है 2 महीने के बाद उससे बात करें तो शायद 50,000 ही रहे।
लेकिन उसको ट्रेन करके भेजेंगे तो 1 लाख रुपए का 1,10,000 कर देगा, 20 कर देगा, 25 कर देगा, और फिर उसके बाद कारवां आगे बढ़ जाएगा। तो वो उस पर हम लोगों ने पूरे डिवाइस उसको पूरी डिजाइन कर रखी है, और गवाई साहब उस पर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बॉम्बे में दी थी। उस चीज़ को हम लोग पूरे देश में प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उसकी जानकारी जो यूनाइटेड लोग हैं हम लोग को हो सकता हो, बट समाज के लोगों को तो है ही नहीं, नए स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल नहीं है। और जो सर्विंग क्लास के लोग बने हुए हैं उनमें तो सोच ही नहीं आती है, क्योंकि आज़ादी के बाद हम लोगों को मजबूरियों, बस ट्रेडिशनल जो मजबूरियां थी, हिस्टोरिकल मजबूरियां थी, हम सर्विस क्लास के बन गए। कोई भी नौकरी मिल गई, कोई भी सर्विस मिला, इंजीनियर, डॉक्टर से लेकर अफसर से लेकर क्लर्क से लेकर तलाटी पलाटी जो भी बने, सर्विंग क्लास के बन गए। जो ही सर्विंग क्लास के बन गए तो आने वाली पीढ़ी हमारी जो है सर्वेंट हो गई। सर्विंग क्लास का आदमी सर्वेंट होता है, नौकरी करने वाला नौकर होता है। तो देश में हम नौकर तो बन गए, मालिक नहीं बने। आर्थिक रूप से जो दुकान जिन्होंने खोली, इंडस्ट्री खोला, किसी भी बिजनेस में गए तो वो मालिक बने, उनके आने वाली पीढ़ियां भी मालिक बनी। तो ये जो अभियान है नौकर से मालिक बनने का, कि हम सर्विंग क्लास के कम, हम जो बिजनेस क्लास के, प्रोफेशनल क्लास के ज़्यादा रहें, इसकी सख्त ज़रूरत है। नहीं तो जो वातावरण प्रेजेंट चल रहा है, आपको हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की पूरी व्यवस्था कर दी है। सरकारी तंत्र ने पूरा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि भारत में जो वंचित वर्ग है, कभी शासक आर्थिक रूप से या सामाजिक तौर पे कभी शासक न बन सके, उसको गुलाम बनाने की जितनी व्यवस्थाएं हो सकती है, रात दिन गवर्नमेंट मशीनरी का दुरुपयोग करके, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके, न्यायपालिका का दुरुपयोग करके, गवर्नमेंट के भीतर जो कोर गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के भीतर गवर्नमेंट होती है जिसकी जानकारी लोगों को कम होती है। आजकल जो है आईबी गवर्नमेंट चलाने लगा, रा गवर्नमेंट चलाने लगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है गोडाउन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वहाँ एक भी फाइल पर सिग्नेचर नहीं होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी को फाइल पढ़ने के टाइम नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी को पता भी नहीं कि फाइल में है क्या है। वो सारा का सारा विवेकानंद फाउंडेशन में जाता है, वहाँ से अप्रूवल होता है कि सुवेटा राम को जो चेयरमैन बनाना है कि नहीं बनाना है शिपिंग कॉर्पोरेशन का, इनको जो सिक्योरिटी का चेयरमैन बनाना है कि नहीं बनाना है, इनको वाइन बोर्ड का जो चेयरमैन बनाना है कि नहीं बनाना है। ये 3 लोग अप्लाई करेंगे, इनका जो है जरा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ रहेगा तो इनका नाम क्लियर, और मेरा नाम कह रही है तो विद्रोही आदमी है, पार्टी लाइन पे चलता नहीं, तो उसको तो बनाने की बात ही नहीं है। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर बने हुए हैं, आरएसएस का कार्यकर्ता बना हुआ है, वो क्या यूनिवर्सिटी में एजुकेशन देगा? वो जो है आपको जो ब्राह्मण धर्म का गुलाम बनाएगा, आखंड पाखंड जितना भी प्रपंच वो सिखाएगा, और वो सिखाकर जो है आने वाली पीढ़ियों को जो है आपको जो है गुलाम बनाता रहेगा। उस बनाने की पूरी तैयारी कर रखे हुए हैं। गैर जिम्मेदार लोग सोचते हैं कि इस पर नजर न करने हैं, जिम्मेदार लोग इसकी चिंतित करते हैं, इस पर चिंता करते हैं। खाने पीने मस्त मस्ती करने वाले लोग ठीक अपने मस्त रहो, कोई बात नहीं, लेकिन समाज की चिंता कौन करेगा? वो अबोध अनाथ है, ऐसे बाबा साहब करते हैं ना, तो ये पोजीशन नहीं बनता भी। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारियां और चिंता बढ़ गई है। इसी सिलसिले में जो है कि आर्थिक आज़ादी का जो कारवां बाबा साहब से उनकी उम्र मतलब कंप्लीट हो गई, परिनिर्वाण प्राप्त हो गए, वो वहाँ से शुरुआत करने की ज़रूरत है। और आर्थिक आज़ादी की शुरुआत जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा समाज गुलाम रहेगा। धन्यवाद आप लोगों को, क्योंकि बात पूरी कंक्लूड करेंगे।